ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜੂ। ओ पुत्र जी, महंगाई जो है सो है, पर पैर भी तो अपनी चादर वेख के पसारने चाहिए ना। ये नहीं भी पहले पैर पसार लो मुड़ के चादर लभदे फिरो। ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। आहो अपना पवे झुग्गा चोड़ हो जे। ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ। आहो भाई मैं कित्थे समझ सकदा जो अजकल के जमाने नूं। मैं तो सारी उम्र डंगरे चारदा रहा। जमाने नाल चलना होर गल है, मगर लगना होर गल है। पर मैं जमाने दे मगर नहीं लग्या, सगों मगर लाया है। जे जमाने दे मगर लग्या हुंदा तां पिंड जवाक भाई पैणा नूं अपने पैरी नहीं सी खड़ा कर सकदा, वो भी एक तनख्वाह विच। ते तुसी दो तनख्वाहां विच दो जवाक नहीं सामभ सकदे। ਡੈਡੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਟਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਏ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ 2-2000 रुपए है। मैं कराती BA 2000 रुपए विच। जिन्ने खर्चे तुसी 10वीं कराने हो बच्चों नूं, उन्ने च तां जम्मण तो लैके ब्याह तक का खर्चा हो जाता सी साडे वक्तां विच। ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ टाइम दी गल है। ओ पापा ओ दादू ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ? ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪੇ ਪਕਾਣੀ ਪਊ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਆਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਖਪ ਕੇ ਆਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਪਾਪਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ, ਰੋਸਟਡ ਚਿਕਨ ਆਲਸੋ। ਲਾਓ दिया, जल्दी तो जल्दी किसी नौकर का अरेंजमेंट करो, मैं इस तरह नहीं रह सकती। हाँ क्या होया एक दो दोस्तों नूं, एक अद्धे दिन च हो जाएगा इंतजाम। लो बेटा पियो। खोल के दां। ओए हुण तुसी गेम खेडी जाओगे। पापा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਮੰਮੀ। क्या हो गया? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਮੰਮੀ। ਪਾਪਾ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ देखो है? जरा। ਤੇ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੇਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। क्या त्रासदी है हिंदुस्तान ते हिंदुस्तानियां दी, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ अमीर विरसे का मालिक होने के बावजूद भी गरीब है। गुरुआं पीरां पैगंबरां देश भगतां नूं जन्म देन ते प्रवान चढ़ाउण वाली सरजमी दा वर्तमान ते भविख इन्ना डराउणा ते चिंताजनक होवेगा, कदे सोचिया भी नहीं सी। कौन जिम्मेवार है इस अंधकार दा? तुसी, समाज, या समाज दे रहनुमा, या फिर मैं? शायद मैं। ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, जिस दी इश्क चो सच दे गीत गूंजे, उस ठंडे दी तार नूं भुल गए, भुल गए। भगत सिंह सरदार भुल गए, सरदार नूं भुल गए, सरदार नूं भुल गए, सरदार नूं भुल गए।
ਓਹੋ, ਕਦੀ ਡੋਰਬੈਲ ਕਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਬੈਲ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਹੈਲੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨੌਕਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਪ ਚੱਪ ਕੇ ਜਾਬਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਓਕੇ। ਸੱਠਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ। ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਕਰ ਗਈ ਕੂਚ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤੋਤਲੀਆਂ ਮੋਤਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਮਰੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਆਹ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ आ जा दरवाजा खुला ही, आ जा। नमस्ते साहब जी, ये बी आर बाबूजी का घर है। आहो, ते तू? हमका बाबूजी ने भेजा है जी घर का काम के वास्ते। अच्छा करते काम ले आया जी। आ जा जी। की नाम किया तेरा? जी हमार नाम चंद्र है जी, चंद्रशेखर। अच्छा, रहने वाला कित्थों दा? हम यूपी का है जी। यूपी तो बहुत बड़ा, कोई पिंड का नाम भी हो? हाँ है जी, हम आगरा का रहने वाला हूँ। वो आगरा का पागल खाना भी बहुत मशहूर है। मशहूर तो बाबूजी वहाँ का ताजमहल भी बहुत है, और आगरा इसलिए भी मशहूर है कि वहाँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये देश भगत लोग भी रहे थे नूरी दरवाजा मोहल्ले में। हाँ, भगत सिंह आजाद, आगरा पढ़ा लिखा लगता? अरे नहीं बाबूजी, हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर कहीं हम पढ़ा लिखा होते तो यहाँ विदेश में आते धक्के खाने रोटी के वास्ते। ओ यार तुसी विदेश क्यों, अपने हिंदुस्तान चो, नाले पंजाब केड़ा नेपाल च है? जिस मुल्क का पंजाब हिस्सा उसे दा यूपी ते बिहार भी। अरे ये लोग तो बहुत कम सोचते हैं बाबूजी, हमें तो गालियाँ सुन सुन के हमारे कान वा पक गए हैं। साले भैये चावल खानी जात और ना जाने का। अरे बाबूजी, अगर हमें अपने देश में भरपेट खाने को मिलता तो हम काहे आते हैं या विदेश में गालियां खाने। नहीं हो तुसी विदेश, नहीं हो तुसी बगाने मुल्क च, तुसी अपने हिंदुस्तान चो जिसनू आजाद कराने लई सब ने कुर्बानियां दित्तियां ने। आजादी दे इस बूटे नू सारे ने अपने खून नाल सींजिया, चाहे यूपी का होवे, चाहे बिहार का होवे, महाराष्ट्र का होवे, बंगाल का होवे, सब दा बराबर दा हक है, किसी दा ना कट ते ना किसी दा फट। अरे बाबूजी, अगर आप जैसा सभी सोच लगे ना तो हमारा मुल्क में भी कोनो कठिनाई ना रहे, यहाँ कोनो दिक्कत ना रहे। हो चंदर, इस मुल्क दा की जे बंदा किसी भी मुल्क दी तरक्की च विकास च अपना हिस्सा पाउंदा है तो उस मुल्क दे हर खित्ते दा बराबर दा हकदार, चाहे वो पंजाब होवे, यूपी होवे, महाराष्ट्र होवे, बंगाल होवे, अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड होवे। ये बात तो आपकी बड़े बाबू साहब एकदम बराबर है। पर ये दस चंदर, तेनू भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इन्हां बारे किवें पता चलिया? इन्हां नूं तां अज समाज दे पढ़े लिखे लोग भी विसारी फिरदे ने। अरे बाबूजी, ये देश भगत लोग तो हमारे खून में है, हमारी सांसों में बसे हुए हैं बड़े बाबूजी। ये लोग तो की मतलब? मैं तेरी गल का मतलब नहीं समझा। हम अभी समझा देते हैं बाबूजी। अब देखिए,
हमने आपको बताया ना कि हम आगरा का रहने वाला हूँ। तो बाबूजी, जिस नूरी दरवाजा मोहल्ले के चबारे में ये सभी देशभक्त लोग रहते थे ना, वहाँ नीचे हमारा दादा साहब का ढाबा था। वहीं चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जैसे जितने भी बड़े बड़े देशभक्त नाथ रही, हमारा दादा साहब ही उनको खाना खिलाए, पानी पिलाए, चाय पिलाए और फुर्सत में उनके साथ बातें भी करे। अच्छा। हाँ, हमारा दादा का नाम था कालू राम और हमारा दादा साहब फुर्सत के संग इनके साथ बतियाते थे। उन्होंने देश भगत लोगों का साथ भी दिया आजादी के संग्राम में बाबूजी। अच्छा, तो एक बात है। और इसीलिए अंग्रेजन ने हमारे बाबूजी को 5 बरस का जेल किया, 5 बरस का। वही हमका बतात रही बचपन में ये सभी देशभक्तन के बारे में। और हमारे दादा ने ही हमारा नाम चंद्रशेखर रखा बाबूजी। अच्छा। अच्छा बाबूजी, ऐसा भी था कि हमारे जो दादा साहब थे ना, वो हमका बचपन में राजे रानियों की कहानी नहीं, वो हमका देशभक्तन लोगों की कहानी सुनाते। उसमें जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, दुर्गा भाभी, बड़े बड़े लोगों की हमें बातें, और हमका भी बाबूजी उनकी बातें सुनना भाता था। हमारे दादा ने बाबूजी जब कभी किसी और की कहानी सुनाने लगना ना, राजे और रानियों की, तो हमने फौरन कहना, अरे दादा साहब, आप तो हमें ये देशभक्तन की ही बातें सुनाओ। वाह भाई वाह। भी कैसे उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, हमारी मुल्कवा को आजाद करवाया अंग्रेजों से। पर बड़े बाबू साहब, हमार बेजे में एक बात नहीं आती। वो की? अब देखिए, हम ही देशभक्तन लोगों को इलाका में बांटने लगे हैं। ये पंजाबी है, ये बिहारी है और ये यूपी का है। हमारे मन को बहुत ठेस लगे है बाबूजी। और हम सोचत का भगत सिंह और सुखदेव ने केवल पंजाब की आजादी के वास्ते काम किया, राजगुरु ने महाराष्ट्र और आजाद भैया ने का यूपी को आजाद करवाया था। अरे बाबूजी, वो लोग तो तमाम मुल्क की आजादी के वास्ते कुर्बान हो गए हंसते हंसते, और हम इतना नीच सोचत रही। सानू आदत पै गई है चंदर हद्दा सरहद्दा च रहन दी, छोटे छोटे घेरिया च, संकीर्ण दायरे च। जिमें डड्डू खूह ते टोबे च रह सकते ने, खुले पानिया च भमत्तर जाते ने, बौंदल जाते ने। खुली फिजा उन्हां दी मत मार दिंदी है। यार चंदर, तू तां गल्लां बहुत वधिया करदा, तेरियां गल्लां सुन के कुछ हौसला हुंदा, कुछ उम्मीद बजदी है। भाई गल कहाँ तुरू। अरे बाबूजी, कौनो भी चीज हासिल करने से उसका बनाए रखना अधिक कठिन होता है। ये हम नहीं, हमारे दादा साहब कहते रहे। बिल्कुल ठीक कहता सी तेरा दादा। ओह गल्ला गल्ला च मैं तो तेनू चाह पूछना ही भूल गया चंदर। मैं तेरे लिए चाह बना के लिया। अरे बाबूजी, आप नहीं चाहे तो आप हम पिलाया करेंगे आपको, अदरक वाली। वो तो ठीक है, रोज तू ही पिलाएगा जी। आज तू पहली बारी घर आया है जी। मैं तेन चाह पिलावांगा जी, मैं लेके आया शुक्रिया। तेरे लिए चाह। बहुत बड़े दिल के लगते हैं सरदार जी, यहाँ ठीक रहेगा हमारा, घर भी ठीक है। डोंकी डोंकी मोंकी ना होए, रैट कैट जाई ना होए, डोंकी मोंकी अरे वाह। रैट। अरे, अरे दसी तेनू मैं दसी मैं मन कैट बिल्ली मैं दादू जी ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਟੀਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲੀ दादू जी। अरे 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 बेटवा, हमें यही बताओ कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और किसको मिलना है। ਲੈ ਬਾਈ ਜਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਸਾਡੇ ਡਰਾइंग रूम ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, आप कौन हो और कहाँ से आए हो और किसको मिलना है। ये तो हद होगी उदे। ए हद नहीं है, तो हाथों में बात होगी। अच्छा अच्छा, तो आप लोग बच्चा लोगन हो इस घर के, नहीं? हम तो बच्चा लोगन है इस घर के, और आप कौन लोग हैं इस घर के। हम है इस घर का न्यू सर्वेंट। क्या हुआ? सीरमेंट नहीं हुंदा तो सर्वेंट हुंदा है। अरे वही तो कहते रही, सर्वेंट। चलो सर्वेंट जी जी। सानू कुछ सर्व तो करो, बड़ी भूख लगी है। अच्छा, तो ही बताओ बेटवा कि आप लोग क्या खाओ। जो तू बनाना सिखाना नहीं, जो तेनू आंदा है वो सिखाते नहीं। ओ चंदर ये खाते ने पिज्जा बर्गर आ फर अरे चाह पी बाबूजी, पुत्तर
ये है चंद्र अंकल। अरे बाबूजी पिज्जा बर्गर तो हम भी बना सके। अच्छा हाँ मंचूरियन मंचूरियन बना सकते हैं। अरे काहे नहीं बेटवा, हम मंचूरियन बहुत टेस्टी बनाते हैं। हाँ चाय हम पियेंगे बाद में, हम इनके लिए पहले मंचूरियन बनाएंगे। अब बाबूजी ये बताइए सब सामान कायदे से है? हाँ हाँ सारा हाँ, हम बेटवा अभी गए और क्यों आए मंचूरियन बनाएगा। इधर से बाबूजी। अरे बाबूजी किचन इधर है। हाँ हाँ इधर ही है। हाँ बंदा तो काम का लगता है। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਮ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਦਾਦੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੇ ਟੀਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਆਏ ਗਏ ਤੇ ਇਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਇਲਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਦੂ ਜੀ? ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਸੇਬ ਨੂੰ ਐਪਲ ਕਹਿਣਗੇ। 1 2 3 ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪੱਲੇ, 1 2 3 ਫੱਟ ਪੈ ਜੂ ਪੱਲੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਉਜੱਡਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਬਾੜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਡੈਡੀ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਵਾੜ ਖਾ ਗਈ ਖੇਤ ਨੂੰ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਹਾਕਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਏ ਰੱਖਾ। हाय मॉम। हाय क्या हो रहा है? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। पर डैडी जी एक गल दसा, अंग्रेजी तो बिना गुजारा भी तो नहीं है। मैडिकल नॉन मैडिकल ते जिन्नी भी हायर एजुकेशन है सारे ही अंग्रेजी दे विच है। ते जो फॉरेन सैटल होना होवे, फॉरेन च तां अंग्रेजी तो बिना सैटल होने दा सोचिया भी नहीं जा सकता। ਰੂਸ ਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ, ਚੀਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਫੋਰਨ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ